Hi, very good morning, Payal ma'am. Very good morning, Pramod sir. And Namaskar. Good morning. Good morning. uh, and very good morning to all the audience from the Pan India and the global. And we welcome to the day two of 17th World Education Summit. On the opening ceremony of World Education Summit, we have a esteemed dignitaries and the top education leaders from Government of Haryana. We welcome Mr. Pramod Kumar, State Program Officer, Department of School Education from Government of Haryana. Welcome, Pramod sir. Welcome, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you for giving your precious time to our summit. And we welcome Ms. Payal Rajpal, founder, the Hack the Crisis India South Asia Head, Robotex. Welcome, Payal ma'am. Welcome to the 17th World Education Summit. Thank you for having me. So, before starting this session, I would like to ask the audience if you have any question, please put your question in the QA section so that we can take it live with our esteemed panelists. And we have Dr. Ravi Gupta sir also, who is the CEO and Founder Technology. Namaskar, Ravi ji. Namaskar. Namaskar. Namaskar, Payal ji. Namaskar. Good to see you again, Dr. Gupta. Same here, Payal. Thanks for joining. Thank you, Pramod ji. Pleasure, always. So I request Rajeshwar that all the names should flash on the screen of our esteemed panelists so that audience will be well aware regarding the designation and the name. So we can start the session. Let me request, first of all, Pramod Kumar ji to talk about your views on the changes emerging in this school education scenario, and especially due to the COVID era. And speak about, say, 5 to 7 minutes, and then we move on to Payal Rajpal ji, and then we have some discussion and the Q&A. Okay, so Pramod ji, over to you. Thank you very much. Thank you very much. देखिए, कोविड-19 ने बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रभाव डाला, इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव डाला, लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डाला। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम भारत की बात करें, अनलॉक 5 के गाइडलाइन आते आते धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो गया। अगर सबसे ज्यादा अभी भी वो चीज प्रभावित है तो वो एजुकेशन प्रभावित है, और विशेष तौर पर स्कूल एजुकेशन प्रभावित है। अनलॉक 5 के बाद बहुत सारे राज्यों ने प्रयास किया, स्कूलों को खोलने की कोशिश करी, कोविड के केस आए। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी ऐसा हुआ, कोविड के केस आए, स्कूलों को बंद करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि लीडरशिप ने दोबारा निर्णय लिया है और 14 तारीख से बोर्ड की क्लासेस के लिए स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। कोविड के संदर्भ में स्कूल एजुकेशन कितना बदला है, अगर आप लोगों ने कल सेंटर के जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर श्री पोखरियाल जी हैं, अगर आपने उन लोगों को सुना हो तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों की चिंताएं, माँ बाप की चिंताएं, एजुकेटर की चिंताएं, सिस्टम की चिंताएं कितनी गंभीर हैं, बोर्ड को लेकर अलग चिंताएं हैं। उसके बाद फर्दर जो एडमिशन है, जो नीट के आधार पे, जेई के आधार पे होता है, उनको लेकर चिंताएं अलग हैं। तो पूरे का पूरा सिनेरियो बदल गया। और सामान्य दिनों में, अगर सामान्य व्यवस्थाओं में हम लोग बात करें तो मार्च के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं होती हैं। सीबीएसई मार्च के पहले सप्ताह के अंत में या दूसरे सप्ताह के आरंभ में अपनी परीक्षाएं आरंभ करता है, और राज्य के विभिन्न राज्यों के बोर्ड भी मार्च के अंत तक अपनी परीक्षाओं का समापन कर लेते हैं। लेकिन अब की बार अगर मैं आज बात करूं तो आज बच्चों के पास टोटल 61 कार्य दिवस बचे हैं। अगर आज भी स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के पास सिर्फ 61 वर्किंग डेज है। उन 60 वर्किंग डेज में मैं बताता हूं क्या क्या करना है। एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सभी बच्चों को प्रैक्टिकल करना होता है, वो इस साल नहीं हुआ। कोई बच्चा लैब में, प्रयोगशाला में नहीं गया। प्रैक्टिकल के बेस पे Some connectivity issue, I think we can just wait. Sure. Payal, I think I will have to request you to intervene by the time we have Pramod ji. हेलो, मैं
हेलो, back. Let's. Yeah, the point is here. क्षमा चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू था। तो जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन जो उसका पार्ट है, उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ। एक प्री बोर्ड की परंपरा है, प्री बोर्ड के ऊपर अभी कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कई बार मुझे बड़ी चिंता होती है कि बच्चे बोर्ड में कैसे जाएंगे। अच्छा देखिए, सिलेबस जो था वो 30% कम किया गया, और वो किया गया जुलाई के आधार पर, जुलाई के महीने में टोटल कैलकुलेट करके। जुलाई के बाद तो स्कूल खुले नहीं है। क्या वो 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया, क्या वो समुचित है? क्या बच्चों की कोई और मांग नहीं है? बोर्ड के अभी तक बोर्ड की परीक्षाएं कैसे होंगी उसका ब्लूप्रिंट भी नहीं आया। ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ओपन बोर्ड बुक होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो फिलहाल जो शिक्षा के क्षेत्र में जो चिंताएं हैं वो इस प्रकार की चिंताएं हैं। एक दूसरी चिंता जो है वो डिजिटल डिवाइड की चिंता है। देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, या मैं बात करूं लाभ से वंचित वर्ग का बच्चा, या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिसको सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जिसको कहा गया, उसका बच्चा जो है उसके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। डिजिटल डिवाइस नहीं है तो उसके पास डिजिटल कनेक्ट नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में जो बच्चा अच्छे परिवार का है, मतलब फाइनेंशियली जो अच्छे परिवार का बच्चा है, उसके पास माँ बाप ने हर चीज मुहैया करा दी है, लेकिन उस जो लाभ से वंचित वर्ग का बच्चा है उसके पास डिजिटल डिवाइड नहीं है। तो ये एक तरह से डिजिटल डिवाइड बन गया है। बच्चे बट गए हैं, दो तरह के बच्चे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे बच्चे और ऑफलाइन एजुकेशन ले रहे बच्चे। तो कल को जो परीक्षाएं होंगी उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिन बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस था उनको अलग पेपर मिलेगा, जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं था उनको अलग पेपर मिलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा इस मंच पर, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार ने, मैं बताता हूं, हरियाणा सरकार ने एक बहुत शानदार निर्णय लिया है। 8वीं से लेके 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार टैबलेट देने जा रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त देने जा रही है। उसके अंदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ और वाईफाई अनेबल टैबलेट देने जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं, अब मुझे नहीं पता कि कोविड की त्रासदी हमारे ऊपर आगे कितना प्रभाव डालने वाली है। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजेगी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ प्रोटोकॉल रहेंगे, कुछ हिदायतें रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें रहेंगी। तो ऐसे में इस साल तो चलिए कोई भी तैयार नहीं था, धीरे धीरे लोग आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों को, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अब डिजिटल कनेक्ट की तरफ जुड़ना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे प्रबंध करने पड़ेंगे जिससे बच्चों के अंदर जो डिजिटल गैप है या जो डिजिटल डिवाइड है वो ना आए। अध्यापक और टेक्नोलॉजी मिलकर बच्चों के नैया पार लगाएं। तो मुझे जो है फिलहाल इतना ही बताना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आपने जो रियलिटी है इस वक्त एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की रियलिटी है, आपने स्ट्रेट अवे उस पर जो उसको बताया है, और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में इशारा किया है। And let me move on to Payal Rajpal, who is founder of Hack the Crisis. Now we are in the crisis. We are in the COVID crisis, and we need someone to hack this crisis, of course. So who better than Payal? Payal, over to you, please. Thank you, Dr. Gupta. And प्रमोद जी, आपने बहुत ही उद्देश्यपूर्ण बात करी। इस बारे में मैं थोड़ा 10 मिनट बाद कि हमने क्या किया है ये डिजिटल डिवाइड को ओवरकम करने के लिए, इस बारे में I'll touch upon a bit later. But बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हरियाणा गवर्नमेंट has made such a fantastic progress. So yeah, Dr. Gupta talking about how we are. So two things here. One is Robotics International, and then secondly Hack the Crisis. So our vision with Robotics India is teaching robotics, artificial intelligence, STEAM, and other future skills with an aim to provide young talent pool from schools a platform into the foreseeable future skills. And our championship goals are synergizing industry and academia. From an idea to prototype, leading to entrepreneurial education in early stages of students. And we are very happy to sort of announce that we've been pioneers in bringing robotics to state governments, tribal, and rural schools of India. Secondly, when we sort of concluded the largest hackathon, one of the largest hackathon of the country, Hack the Crisis, in April 2020, what we did see is that
there was such amazing exemplary testament of how technological skills have helped the youth of India create even during these unprecedented times. So our winning solutions were low-cost ventilators, hand sanitizers, which was made by a team in Coimbatore by sea salt water because India was in lockdown. A last-mile delivery drone was created by tins that these students found in their houses. So it sort of reinstated our faith in the fact that when we talk about skills of today for future of tomorrow, and quoting World Economic Forum here, that the future of jobs will heavily rely on STEAM education today. Science and mathematics is fantastic, and how we can put that in a implementation sort of platform is step two. However, STEAM, AI, robotics, the future skills are equally important, and very happy to see that our National Education Policy 2020 is it marks a quantum jump in equalizing education. So one, which is rooted in the Indian ethos and traditions, and second is equally in 21st century knowledge systems and technology, where coding can be, should be taught from class 6 onwards. Will focus on idea, application, problem solving via technology, and increase focus in vocational studies from school level itself. So, and before I hand it back to you, I would also like to sort of reinstate that when we're looking at the state of Haryana, looking at providing tablets to the students. Similarly, we've been working with the Zilla Parishad of Maharashtra, where we piloted with 21 schools, 500 children. Our ramp up is for 850,000 students in 2,800 schools. And similarly, in 5 other states. We've launched a program for 1,000 students that says Girls Who Build Robots. And the way we would overcome the digital divide is we have a fantastic, learning management system. And that doesn't take a lot of bandwidth, which means the students can study the future skills, content and curriculum at their ease after downloading it. So we've also taken this, time in the whole COVID sort of crisis as to how we can reinvent learning and reach to the deep pockets of the demographics of our country where there's a clear digital divide. And I wouldn't say that it's only in the villages. I mean, look at us, even in the cities, there are times where I'm in a conference and suddenly, it's blanked out. So it's even more in the villages. So happy to sort of, say that we have a fantastic LMS which uses less bandwidth and allows kids in lesser, bandwidth areas to be able to study the future skills. And we are very proud to say that we didn't limit it only to the private sector, but we brought it to the public sector as well, because everyone deserves to learn the skills of today for jobs of tomorrow. Fantastic, Payal. Good to know that you have reached out to so many students, and also across the rural students, where you are bringing IT and coding and AI to them. In fact, in the morning, we were having a chat with Anshul Sonak, who is the global head for AI at Intel, and he was talking about that how it's important that AI is introduced in schools so that our students are better prepared. So प्रमोद जी, I will मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से है और आपने आईटी को देखा है पिछले 15 इयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के काफी प्रोग्राम्स हुए हैं जो आईटी को इंट्रोडक्शन पे हैं स्कूल्स में। लेकिन सडनली एक कोविड आया और अचानक जो पिछले 15 इयर्स में हो नहीं पाया वो अचानक 1 महीने में, 2 महीने में, 3-4 महीने में सारे स्कूल्स और आज बच्चे आज आईटी में हैं।
जो हम तो कहते थे कि जो भी होने में ये सब जो है 10 साल और लगेंगे, तो अचानक जो है रातों रात कुछ और जो है बदल गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में, और आपने एक बात अभी बहुत अच्छी बोली कि चाहे वैक्सीन आए या ना आए, पर उसको इम्प्लीमेंट होने में भी वक्त लगेगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में आप ओवरऑल जो एजुकेशन है उसको कैसे देखते हैं कि अगला जो साल है भी हमारा, जो मानिए कि अब 2021 जनवरी आने वाली है, नया साल शुरू हो रहा है, तो अखिल 2021 की जनवरी से दिसंबर आप स्कूली शिक्षा का जो रूप है, स्वरूप है, और उसके आईटी का जो रोल है, वो कैसे देख रहे हैं प्रमोद जी? म्यूट पे हैं आप प्रमोद जी, आप प्रमोद जी आप म्यूट पे हैं, प्लीज। या थैंक यू देखिए, हम अगर स्कूल एजुकेशन में आईसीटी की बात करें, तो जब एनसीईआरटी ने आईसीटी डिवीजन बनाया आज से लगभग 20 साल पहले, और एक पहला ड्राफ्ट आया कि स्कूलों में आईसीटी कैसे होगा, वहां से स्कूल सिस्टम में आईसीटी की शुरुआत हुई। हम लोग क्या करते थे, इस पूरे प्रोग्राम का नाम था कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और ये कैल के नाम से इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा था, जबकि और कैल था ही नहीं, मैं तो इसको लैक बोलता था, लर्निंग अबाउट कंप्यूटर था। दुर्भाग्य से क्या हो रहा था कि स्कूलों में ना बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा था, माउस क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। जब मोबाइल आ गया, जब स्मार्टफोन आ गया, तो आपको कैल और लैक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो आपने प्रश्न किया, ये इसका उत्तर यहीं पे है। हमारे पढ़ाने में गलती थी, हम पढ़ाई गलत रहे थे, हम बच्चों को डिवाइस पढ़ा रहे थे, हम बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, हमने बच्चों को कंप्यूटर से कैसे पढ़ना है इसके स्तर पर हम आए नहीं थे। जब मुसीबत आई, सब लोगों को इसकी जरूरत का पता लगा, सब लोगों को लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा। स्मार्टफोन का एक्सेस लगभग टीचर के पास था। मुझे बड़ी हैरानी होती है, स्कूल सिस्टम की मैं बात करता हूँ, मेरे ही स्कूल सिस्टम में, जिस राज्य में मैं काम करता हूँ, वहां पर बहुत से टीचर ऐसे जो 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा के हैं। जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, ऑनलाइन मैकेनिज्म स्टार्ट किया, ऐप बेस्ड चीजें स्टार्ट की, तो 50 साल से ऊपर के टीचर ने भी उसे फटाफट करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी मास्टर ट्रेनर का, की रिसोर्स पर्सन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने ही परिवार के बच्चों से, पोते पोतियों से, छोटे भाई बहनों से सीखा कि मुझे चलाना सिखाइए। और आज जो है, जिस भी टीचर के पास स्मार्टफोन है, वो ऑनलाइन भी जुड़ रहा है, वो अपनी असेसमेंट भी कर रहा है। दीक्षा पोर्टल के ऊपर भारत सरकार जो है, वो दीक्षा के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज टीचर को करा रही है, वो मोबाइल के ऊपर कोर्सेज भी कर रहा है। तो ये जो जब जरूरत की बात आई, तो जरूरत में सबने पकड़ा। मैं तो ठीक है, कोई भी त्रासदी जो है वो ना ही किसी राष्ट्र के ऊपर आनी चाहिए, और त्रासदियां से दूर रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो त्रासदी को अपॉर्चुनिटी में बदले, जो ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। और कोविड की त्रासदी को स्कूल शिक्षा ने अपॉर्चुनिटी में बदला है। धीरे धीरे चीजें उसके मुताबिक हो रही हैं। अब आने वाले समय में, जैसे मैं भी बात कर रहा था, मैं मानता हूं कि ठीक है, स्थिति सामान्य हो जाएगी, 1 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा, या 1.5 साल लगेगा, उसके बाद दोबारा उसी तरीके से स्कूल खुलेंगे, मॉर्निंग असेंबली होगी, बच्चे बैठेंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन डिजिटल जो कनेक्ट है, जो आज हम लोगों ने सीखा है, जो डिजिटल अनेबिलिटी है, या जिसको हम सिर्फ डिजिटल को एक सिंपल स्मार्ट क्लासरूम के तौर पे लेते थे, हम कहते थे कि ठीक है, एक टीचिंग लर्निंग एड है, वीडियो दिखा दिया, बात बन गई। अब ये वहां तक सीमित नहीं है, अब ये बहुत गहराई में चला गया है। अभी जैसे बात हो रही थी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ऊपर की चीज माना जाता था, लेकिन अब बच्चों को पता लग गया कि एआई क्या है। जब आप एक वीडियो को सर्च करते हैं और उसके बाद उसके सिमिलर वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाए, तो ये एआई है। तो बच्चों को भी पता लग गया, टीचरों को भी पता लग गया। धीरे धीरे जो बड़े बड़े भारी शब्द थे, डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये जो भारी भारी थे कोविड से पहले, ये हमने अंगीकार कर लिए, हमारी वोकैबुलरी में आ गए, हमारे आचरण में आ गए, हमारे रोज के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे सभी राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है, उसको साकार करने का जो अब समय है, उसमें सभी राज्य सरकारें और मतलब सीएसआर, फाउंडेशन, प्राइवेट कंपनी, सब लोग इस तरीके से ब्लेंडेड बनाएंगे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को कि पाठ्य पुस्तकें भी रहेंगी, कार्य पुस्तकें भी रहेंगी, प्रयोगशाला भी रहेंगी, टीचर भी रहेगा, स्कूल भी रहेगा, लेकिन उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा अहम रोल होगा कि टीचर के उस वर्कलोड
को, जो वो पहले बाकी चीजों में लगाता तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारी स्टेट ने अभी, हमारे राज्य ने अवसर ऐप बनाया, हम लोग अपना डिपार्टमेंट ने अपना अवसर ऐप बनाया। वो एक तरीके से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उसके अंदर हमारा अपना करिकुलम है, अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं, अपने टेस्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, क्विजेज हैं, सभी हरियाणा सरकार के जो पाठ्यक्रम उसके ऊपर आधारित है। तो धीरे धीरे हम टीचर को और बच्चे को और उसके पेरेंट्स को, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, टीचर को और बच्चे को और उसके पेरेंट्स को, तीनों को हम लोग उसकी तरफ ले जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन टेस्ट बच्चा दे। पहले टीचर टेस्ट कंडक्ट करती थी, पहले टीचर टेस्ट बना के लाती थी, फिर उसके पेपर छपते थे, पेपर छपने के बाद बच्चा बैठता था, फिर पेपर देता था, फिर उसको चेक किया जाता था, फिर उसकी डाटा एंट्री होती थी, फिर उसके एनालिसिस निकलते थे, फिर रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता था और फिर पीटीएम में माँ बाप के साथ साझा किया जाता था। अब इस पूरे प्रोसेस को एक ही वन गो में है, टेस्ट डेवलप हुआ, टेस्ट बच्चे के पास चला गया, माँ बाप को मैसेज चला गया कि आपके बच्चे ने टेस्ट देना है। बच्चे ने जब मर्जी बैठ के, जहां मर्जी बैठ के, रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे ने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देते सब कुछ रिकॉर्ड भी होगा, एनालिसिस भी निकल गए, एक्टिविटी भी निकल गई, कंपिटेंसी भी निकल गई, बच्चा किस कंपिटेंसी में कमजोर है, सारा जो लर्निंग आउटकम सब कुछ आके बच्चे के पास, टीचर के पास, स्कूल मैनेजर के पास, मॉनिटरिंग एजेंसी के पास, डाइट के पास और इवन निदेशालय के पास भी आ गया कि रोहतक जिले का या मेवात जिले का फिरोजपुर नमक ब्लॉक का, बीमा गांव का 7वीं क्लास का बच्चा मैथ में इस तरीके से परफॉर्म करा। तो मुझे लगता है कि ये जो काम था, जो पहले सारा मैनुअल होता था और जिसको टीचर अवॉइड करता था, टीचर को लगता था कि ये एनालिसिस मुझे क्या देगा, ठीक है मैंने लेक्चर दिया, पढ़ा दिया, इस बच्चे को आता है, इसको नहीं आता, मुझे पता है इस बच्चे को आता है, इसको नहीं आता, मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम कम करना है। तो ये जो चीज टीचर पहले मैनुअल देखता था और जो कुछ ही बच्चों का देख पाता था, टीचर बहुत बेहतर तरीके से देख पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आने वाले समय में बहुत पॉपुलर होंगे। डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे और जो लर्निंग वीडियो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। और एक फील्ड और है, मेरे से पहले के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती से स्टेम और स्टैम की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि भारत में जो ये पॉपुलर नहीं हो रहा था उसके पीछे भी वजह थी डिजिटल गैप, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल अनेबिलिटी का ना होना। मुझे इजराइल में पढ़ने का मौका मिला। मैंने वहां पे आईसीटी को इजराइल में पढ़ा, 1 महीना मैंने वहां पे इजराइल में पढ़ा। उसके बाद मैंने भारत में काम किया, अपने प्रदेश में काम किया, मुझे आईसीटी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो मैंने देखा कि इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये है इसके पीछे कि हमारे यहाँ उस लेवल का हार्डवेयर नहीं था, उस लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं थे। अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें आज हम लोग, या हम बात करें गूगल कार्डबोर्ड की बात करें, कितना आसान और कितना सस्ता साधन है। 50 रुपए का एक गूगल कार्डबोर्ड और AR VR के वीडियो के साथ बच्चे को कितनी शानदार फीलिंग देता है। हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत सारे टीचर हैं जो बायोलॉजी के टीचर थे, जो ह्यूमन एनाटॉमी के टीचर थे, उन्होंने इन वीडियो से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। कितने शानदार तरीके से आप बच्चे को दिल, दिमाग, कान, शरीर के सारे अंग पढ़ा सकते हैं, जो क्लासरूम में, लेबोरेटरी में पॉसिबल ही नहीं है और उसके ऊपर खर्चा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर होंगे। लेकिन यहां मुझे डर भी है। मैं सरकार का एक सिस्टम का आदमी और पेशे से एक अध्यापक हूं, तो मेरा डर है, मुझे यहां ये है कि बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी को कुछ लोग बहुत महंगी करके बेचने के लालच में शुरुआत में उसे अनपॉपुलर कर देंगे। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं, मैं जब 2014-15 में इजराइल गया तो मैंने वहां देखा एक 10वीं क्लास का बच्चा एक गेम बना रहा था, कोडिंग कर रहा था। मुझे उस समय बड़ी हैरानी हुई, अरे यहाँ 10वीं के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, अरे 10वीं का बच्चा गेम बना रहा है। लेकिन वो आज मेरी हैरानी तो कुछ भी नहीं, मेरे परिवार के बच्चे भाई पाइथन कर रहे हैं, मेरे परिवार के 3री 4थी के बच्चे स्टोरी बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं। क्यों? अब एक्सेस है। 2014-15 में वो एक्सेस सिर्फ इजराइल के बच्चों पे था। वो एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन आज एक्सेस है। तो जो मेरी चिंता भी वही है गुप्ता जी। मैं बहुत इस चीज को लेकर सोचता हूं कि टेक्नोलॉजी आए, सस्ती आए, टेक्नोलॉजी को ज्यादा लोगों तक पहुंचा के कंपनियां पैसा कमाएं, ये ज्यादा बढ़िया है। कम लोगों तक देके और महंगी टेक्नोलॉजी बेच के पैसा कमाएं, ये जो है वो नुकसानदायक होगा। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू प्रमोद सर, काफी आपने सही तरीके से बताया, उल्लेख करके बताया कहाँ लैग कर रहे हैं और क्या बिहेवियर चेंज आने वाला है सर। तो पायल मैम, मैं क्वेश्चन टू यू कि यू आर वर्किंग विद द
industry stakeholders, with the academicians, and with the policymakers. So, what are major challenges you are seeing right now in the basis of school education, and what are best practices according to you that we can work on this ground so that we can overcome this situation and our future will be bright if we can work on that. Great, thank you, Abhishek. And Pramod ji, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपने अभी जो बोला बहुत ही इंस्पिरेशनल बोला, ऐसे लग रहा था कि बस आप बोलते रहे, अब मुझे नहीं बोलना. I was about to say the baton is now with you, but you're so right when you say that everything is sold in such a overpriced way that it doesn't have the, forget inclination, but the state governments may not have the budget to sort of take this ahead. Or one of the reasons why we launched this robotics for rural is because we know, since we work heavily with countries like Finland, Estonia, and Sweden, which are for the last 5 decades have been number one. We've understood that there is a methodology that can be adapted from these countries, how we can make learning accessible, affordable for our country kids, and not just, why should robotics be only for the rich kids? कि भाई ये बच्चा है 25,000 का किट ले लेगा मेकर्स लैब का तो फिर ये रोबोटिक्स सीखेगा. नहीं, we made sure कि हमने वही किट को 2300 में बनाया है मेक इन इंडिया में. वो जो प्रोटोटाइप है हमारा फिनलैंड से आया है, हमने इसे मेक इन इंडिया में बनाया है और हमने बोला है कि 1:4 4 बच्चे रूरल के एक रोबोट बनाएंगे और 8 घंटे में इन बच्चों ने जो बनाया है और इसके बाद जो स्पर्धा में पार्टिसिपेट करके 75% ट्रैक कंप्लीट किया है, that is what gave us the inspiration that currently our public sector portfolio is a lot more larger than what we are doing for the rich kids, because हमें नहीं बेचना है ये 10,000 15,000 का कोर्स जिसमें सिर्फ 20 घंटे की लर्निंग है. ये करना ही नहीं है, because this is not what future skills accessibility is. And like Pramod ji rightly said, कि when he saw a 10th grader making a game or an app, it was quite shocking. And when we were last year जब हम international स्पर्धा में थे एस्टोनिया में, वहाँ 4.5 साल का एक बच्चा था जिसने एक रोबोट बना के उस पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, which means we are lagging bit behind, because when we look at World Economic Forum, in the top 20 countries, we are still yet to find that placement, in terms of where India will be in terms of teaching skills of today to the students. And that's why we said in excuse me, our robotics courses एज इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 9th ग्रेड में ही एआई सीख सकते हैं, नहीं. हम 6 साल के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिखा के रोबोट कैसे बनाना है, उसको कोड कैसे करना है, उसको प्रोजेक्ट में कैसे डालना है. हमारे एक बच्चे ने एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट बनाया था, यही ग्रामीण विभाग से था, कि 25% बचत हो गई फार्मर की जो सीड सो करने हैं उसमें. ये जो बच्चे ने रोबोट बनाया, कोड किया और उसको अच्छे से एक व्हील्स वगैरह लगाए, एंड ही टेस्टेड इट, ही वन द कंपटीशन. बट this is what a rural child has done. It's so effective that it's a project based learning, it's accessible, it's affordable, and the kids are adapting to it. The adaptability of this has gone so much higher after making it available to everyone. So coming back to your question, Abhishek, what the I wouldn't say challenges, but I would call it areas of development, where adding on to what Pramod ji said, that redefining the role of an educator. So the notion of an educator as a knowledge holder has witnessed a shift, with students being able to access various skills and subjects digitally. And hence, the resilience, emotional intelligence, and adaptability, which is crucial for the next generation, is now being facilitated with the educator being empowered by this entire digital shift, where finally a tutor and a child together will not only learn in the process, but it will become a very project-based learning model, even if we think about science and maths. So that's one sort of area of development. The second we are looking at is how teaching life skills is needed for the future, and how we are working on it at the moment. Because when we look at what is the future of workforce, we are calling it
crafting a talent strategy of 1, life skills, and 2, technical skills is equal to future workforce. Because not just, COVID gave a shocker to our system, but a lot of assessment and, reports, surveys have been saying that in demand of the future skills, a child should not only know maths, science, STEAM, future skills, IoT, cloud computing, and all these big words, but they also need to understand adapting a resilience model. If in case there is another epidemic or pandemic, God forbid that never happens, but our children will be ready if they have strategy building, communication, cognitive thinking, and the best part is that the technical skills, which are now called the future skills, have a large element of these life skills in it. Why? Because the kids are working in teams, they're making projects, they're explaining the projects, which means that when we talk about, the future of what happens in 2030, how many jobs, we're looking at by 2025, 85 million jobs globally will be displaced by increasing automation. And happy to see that, India, as such a large demographic, has started to make these changes by taking not baby step, but large steps. Like tablets to students is a phenomenal, first step in making them ready for the future workforce. So, yeah. Thanks, Payal ma'am. Thanks for giving your inputs regarding the opportunities lies behind. So प्रमोद सर, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे एक बार इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया कि व्हाई आर यू हायरिंग सो मच इंडियंस, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया कि इफ वी डिडंट हायर इंडियंस, अंदर माइक्रोसॉफ्ट विल बी ओपन इन इंडिया। तो यानी इतना हमारे पास अथाह टैलेंट है, अथाह प्रतिस्पर्धा है। जैसे पायल मैम ने बताया कि एग्रीकल्चर के इतने बड़े बड़े बच्चे, 6 साल के बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, 9 साल के बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड कि बाहर यही बच्चे बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, और हमारे यहाँ ऐसी क्या जो चीजें हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं ताकि जो स्कूल्स हैं, हायर एजुकेशन से जो और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कुड मेक द फ्यूचर ब्राइट ऑफ अवर स्टूडेंट्स। सर माइक ऑन, प्रमोद सर माइक ऑन कर लीजिए। जी 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 जी, थैंक यू। अभी मैं पायल को सुन रहा था। देखिए, जो प्रश्न आपका है इसका जवाब कहीं ना कहीं जो पायल ने बताया उसमें मैं बताता हूँ। मैंने फिनलैंड को स्टडी किया, मैं फिनलैंड में जाता हूँ, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता भी हूँ, वहां जो है जाता हूँ। तो फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, और पास में ना इस्टोनिया है, छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा है। अब इस्टोनिया जैसा कंट्री टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। अगर हम फिनलैंड की ही बात करें तो एक एंग्री बर्ड गेम, देखिए फिनलैंड को पहले नोकिया का मोबाइल, एक मोबाइल नोकिया, और नोकिया के बाद एक गेम एंग्री बर्ड। इन दो चीजों ने, टेस्ला चलो तीसरी आएगी देखते हैं, लेकिन इन दो चीजों ने फिनलैंड को कितना रेवेन्यू दिया, क्या कभी सोचा? अब प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों की बात करते हैं, कोई भी एक चीज जिसकी भी क्लिक करगी, कोई भी एक चीज जिसकी भी क्लिक करगी उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगी। दिक्कत क्या हो रही है? हम जो शहरी लोग हैं, जो कस्बों में और जो बड़े शहरों में रहते हैं, हम लोगों का एक ही सपना है, अपने बच्चे को फटाफट आईआईटी तक पहुंचाओ, आईआईटी तक पहुंचाओ, आईआईटी तक पहुंचाओ। उसके बाद वो आईआईटी से पास आउट होगा और एक बड़ी कंपनी में पैकेज लेगा और वो जाके वहां बस जाएगा। इसी के बारे में बात करें। इनोवेशन तो इसमें है ही नहीं। इनोवेशन कहां है? इनोवेशन बिल्कुल ठीक बात है, ये पायल बिल्कुल ठीक कहती हैं। इनोवेशन कहां है? इनोवेशन गांव में है। आज गांव का बच्चा कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए, आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, मैं गांव का हूं इसलिए बता रहा हूं, एग्रीकल्चर फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में जितने भी यंत्र और औजार बने हैं, जितने भी यंत्र और औजार बने हैं वो किसान ने बनाए हैं, वो पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बनाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट बैठे हैं उन्होंने नहीं बनाए, वो किसान ने बनाए। किसान को काम करते करते लगा कि यार अगर ऐसा औजार हो तो मेरा काम आसान होगा, ऐसा औजार हो तो मेरा काम आसान होगा। अब उस औजार को अगर गांव का बच्चा टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा, इसको इनोवेशन करेंगे, ये हमारे कल को पेटेंट होंगे, इन्हीं पेटेंट से कल को हमारी चीजें बनेगी और इसी से हमारी कमाई होगी। और मुझे लगता है
अगर हम टेक्नोलॉजी को गांव की तरफ ले जाते हैं तो गांव का वो बच्चा जिसके अंदर बहुत सारा इनोवेशन है, जिसको हम देसी भाषा में जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ कहाँ हो रहा है? जुगाड़ गांव में ही हो रहा है ना। तो वो जो जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं देसी भाषा में, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो उसी का नाम इनोवेशन बनेगा, उसी के पेटेंट होंगे और वो पूरी दुनिया को हम लोग जो है बेचने का काम करेंगे। देखिए, हम लोगों को मोबाइल लर्निंग वीक जो है हर साल ऑर्गेनाइज होता है पेरिस में, यूनेस्को करवाती है, सब लोगों को पता है। अब एक छोटा सा डिवाइस मोबाइल जो 4,000-5,000 रुपए का आज आने लगे, 5,000 रुपए के छोटे से डिवाइस से लोगों की जिंदगी को कितना आसान कर दिया है। अब यही चीज, इन्हीं चीजों का एक्सेस हम अगर हर बच्चे तक पहुंचाते हैं, टैबलेट का एक्सेस, मोबाइल का एक्सेस हर बच्चे तक पहुंचाते हैं और वहां से वो डिफरेंट ऐप लेके और उसको जोड़ के जब वो बच्चा उस तरीके से सीखना और करना शुरू करेगा, तब जो है हम लोग ये जो आपने कहा कि हम लोग जो टैलेंट है, हम लोग कहां पिछड़ रहे हैं, इसकी भरपाई कर पाएंगे। मैं आपको पुनः एक बात दोहराता हूं, शिक्षा का मतलब केवल रोजगार लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल अंग्रेजी बोलना नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल 4 किताबें पढ़ के और बड़े बड़े थीसिस लिखना नहीं है। शिक्षा का मतलब है चीजों को समझना और समझ के उसके ऊपर काम करना। जो भी व्यक्ति जीवन में ये सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे दूसरे लोगों का जीवन आसान होगा, ये इनोवेशन है। और आज जो जीवन आसान हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के दम पे आसान हो रहा है। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड है, कोविड तो चला गया, सब कुछ चला गया, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हम लोग टेक्नोलॉजी को सिर्फ पढ़ाई लिखाई से न जोड़ें, हम लोग टेक्नोलॉजी को एक डिवाइस के रूप में, असिस्टिव डिवाइस के रूप में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में, इनोवेशन के रूप में, एक ओपन सोर्स के रूप में, एक ग्लोबल लर्निंग के रूप में, इन सब रूप में देखें और टेक्नोलॉजी को अंगीकार करें, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएं। मेरे से पहले आप सब लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो क्रिएटिव थिंकिंग, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिसिस, जो चीजें यूं ही नहीं लिखी गई हैं। पूरी दुनिया में जो भी कंट्री राज कर रहे हैं इकोनॉमी के मामले में, मैं सेना के मामले की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमी के दम पे जो भी कंट्री पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पे राज कर रहे हैं। मैं बताता हूं, देखिए, मैं जब मैं इजराइल में था तो एक स्कूल में हम लोग गए तो वहां जैसे बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, देखिए कितना शानदार जवाब है तीसरी चौथी क्लास का। उसने कहा कि आई वांट टू सर्व द मिलिट्री ऑफ माय कंट्री, I want to strengthen the economy of my country and I want to strengthen the technology of my country। तीन ही चीजों के ऊपर उस बच्चे ने बात की। तीसरी चौथी का बच्चा का माइंडसेट ये, उस तीसरी चौथी के बच्चे को पता है कि इकोनॉमी जो है वो टेक्नोलॉजी से स्ट्रेंथन होती है। तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का बिल्कुल इंपॉर्टेंट अंग बना देना चाहिए, इसके साथ जोड़ के इसके साथ बता देना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे और इसी तरीके से नवाचार आएगा और नवाचार से ही पेटेंट होंगे। दुर्भाग्य की बात है कि ये कंट्री मतलब पेटेंट के मामले में या अगर हम बात करें कि आईआईटी भी हमारी पिछड़ रही है, उस लेवल का पेटेंट आईआईटी में भी नहीं हो रहा है जिस लेवल के पेटेंट छोटे छोटे कंट्री करवाते जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इस्टोनिया और फिनलैंड की बात की। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है, ये गैप जो है ये तभी फिल होगा जब हम हर बच्चे को डिजिटल डिवाइस और डिजिटल डिवाइड दोनों चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने काफी संक्षेप में बताया कि कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या बिहेवियर चेंज हमें करना चाहिए। पायल मैम, आपके क्या विचार हैं इसके संक्षेप में रिगार्डिंग द बिहेवियर चेंज और वर्क ऑन द फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स? Yeah, so once again, Pramodji, you have a new fan now. So every time you're speaking, I will be there to hear you. But thank you for the insightful thoughts. And it's when we say that it's a very small world, it's really true because so I am the former spokesperson for the Education Ministry of Estonia to India. And one of the main reasons we worked on this for the last 3 years is because like you said, that for any country to be, in the number one's technology is at the helm of it. So when I was spokesperson, not only did I look at it from a perspective of our children going to Estonia to study
things like cybersecurity and e-governance. But Telangana government also made sure that these students come back and help implement these paperless e-governance policies in their states. We also looked at making, bilateral, multilateral ties with, AKTU University to have Center of Excellence for Cybersecurity. So a lot of fantastic things came out of these, future talks with what Estonia and India can do together. And it's like I said, it's a small world, because you mentioned about Peter Westerbacka, the mighty eagle behind Angry Birds. Bizarrely enough, he will be on a panel tomorrow, which I'm planning to moderate. And our gamification and future skill courses have a collaboration with Peter's company back in Finland. So that's where our students are, learning this technology from. And, I would definitely want to speak to you later on as to how we can do this in Haryana, because there's nothing yet that we've, done in that state. And secondly, we are also speaking to 2 states. It's in early stages on how, and I'm spearheading this, and how we can, adapt a Finnish teacher training plus student training and early education going up to 10th grade in, so early discussion in 2 states. So how NEP can adapt a Finnish model. And again, this is in the Finnish side from the Ministry of Education, Finland, is spearheaded by Peter Westerbacka as well. So I hope that we can sort of learn from that at some stage. But coming back, Abhishek, what I would say here, that it's good to see how India has already stepped the foot in the door and started making changes towards how we were a little late, but thanks to COVID we are catching up, and we are catching up so soon that I know that it's not too far in the next 5 years where we will see India as one of the most progressive nation, not only in education. We are already number 1 when it comes to technology. So I graduated from LSE. I worked for Cable and Wireless in London, and 80% of our techies were from India. They were either coders from Patni or they were testers from Infosys, and 500% volumes of work from shifting a technology of 2G to 3G was done by the Indian support staff. I'm sure if someone else is listening to me in the UK, they're not going to be very pleased. But this is the sort of truth. So I'm glad that we took a little time, but we have arrived. And it's going to be a fantastic journey of learning. And the more we empower the youth of rural, the more we are making sure that these kids will not only reinvent, but invent, and they will do it for our country. So every time people ask me, why are you so passionate about, the state government schools? Because like Pramod ji said, this is where the innovation sits. अब जैसे हमारे हैक द क्राइसिस में जुगाड़ से ही उन्होंने इतने अवार्ड विनिंग सॉल्यूशंस बनाए हैं. So drone was one example, low cost ventilator. Like how have you made a ventilator for 10,000 rupees? There was a team from Bangalore which had a robot. So it's a robotic, school and company. They quickly adapted that robot into a UV disinfectant robot that cleans the wards and hospitals of COVID patients in 80% the less time, which means the robot was ready. The whole country was in lockdown. They've taken the UV rays technology, they've combined it together, and they have won the first prize, not only in Hack the Crisis India, which we did with Ministry of IT&E, but also at the Global Hack. They won the podium positions in 151 countries on innovation track. Our country won that prize of UV disinfectant robot. So this is what I mean, that Jugaad plus empowering them with skills is going to put us on the podium. And I'm really thrilled to be a part of this journey. Thank you, Payal ma'am. Thank you for giving your inputs regarding in the rural areas. And I also think that without developing the rural areas and the rural children, we can't move ahead. प्रमोद सर, मेरे को ये पूछना था आपको, हम रूरल की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन रिमोट एजुकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ वी आर फेसिंग. जो रूरल पे, जो रिमोट एरिया में हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, यानी कि मोबाइल्स भी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो किस तरीके से हम टैकल कर रहे हैं सर? आपका
यानी क्या सुझाव है कि हम किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। रूरल एरिया में दिक्कत है। अगर रूरल एरिया में दिक्कत ना होती तो रंजीत को आईसीटी का ग्लोबल अवार्ड ना मिलता। रंजीत ने जो आईसीटी का ग्लोबल अवार्ड जीता वो इसलिए जीता है कि उसने रूरल एरिया की दिक्कतों को दूर करने का काम किया। ये बात बिल्कुल सत्य है। टेक्नोलॉजी का गैप है, टेक्नोलॉजी का डिवाइड है। इंटरनेट एक्सेस की बात करें या हम लोग कंटेंट की बात करें या हम लोग हार्डवेयर की बात करें, बिल्कुल सही बात है, रूरल में ये दिक्कत है। और इसका हल जो है वो यही है कि हमारी सरकारों को, खासतौर पर राज्य सरकारों को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कहा गया है उसको धरातल पर लाने का काम करना चाहिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बड़ा साफ कहती है कि आपकी जीडीपी का 6% आपको शिक्षा के ऊपर खर्च करना है, राइट। और जो ये सारा गैप जो मैं, आप, पायल, जो बाकी सब लोग या पूरा पैंडेमिक या ग्लोबली जो है बातचीत हो रही है, वो कह रहे कि हाँ टेक्नोलॉजी मददगार है टीचिंग लर्निंग में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, हम लोगों ने पैंडेमिक में देख लिया है, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हम लोग मन से लीडरशिप चाहती है। तो अब लीडरशिप को ये चीजें धरातल पे ले आनी चाहिए, इसके अंदर पहल करनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार को। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार राज्यों को फंडिंग करती है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, अब समग्र शिक्षा के माध्यम से। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है भारत सरकार सभी राज्यों को मदद देती है। मैं बहुत खुशहाल हूं इस बात का कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जो एक बहुत अमीर राज्य है, मैं एक गरीब राज्य से नहीं आता। हरियाणा जो है भारत के उन सौभाग्य से हम उन राज्यों में हैं जहां राज्य सरकारों की मंशा हमेशा पॉजिटिव रहती है, लीडरशिप हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए बात करती है। हमारे राज्यों की स्थिति ऐसी है, लेकिन सभी राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालात या पर कैपिटा इनकम या जो एक्सेस है वो अच्छा नहीं है। मेरे हरियाणा के 11-12 जिले तो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अगर मैं सुबह चलूं तो शाम होने तक मैं हरियाणा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता हूं, तो एक्सेस भी कोई इशू नहीं है। मेरे यहाँ तो डाटा कनेक्टिविटी भी कोई इशू नहीं है। 3-4 जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लगभग सारे हैं, हर गांव में है। तो हमारे राज्यों में तो ये चीजें संभव है, लेकिन जब हम बात करें तो एज ए होल कंट्री, एज ए होल सभी बच्चों की बात करनी पड़ेगी। तो सभी राज्य सरकारों को 2-3 चीजों के ऊपर मोटा मोटा काम करना पड़ेगा। नंबर 1 तो जो इंटरनेट का एक्सेस है, जो वाईफाई का एक्सेस है, जो फ्री इंटरनेट का एक्सेस है, एजुकेशन पर्पज के लिए वो बच्चों तक पहुंचाना होगा। देखिए, अभी अब 4 साल 5 साल के बच्चे ने एक रोबोटेक के ऊपर काम किया। अब हम आज से 2-1.5 साल पहले मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करता था जो कहते थे कि एक बच्चे को डिजिटल कनेक्ट से दूर रखना चाहिए, बच्चे को डिजिटल डिवाइस से दूर रखना चाहिए, बच्चों को लैपटॉप मत दें, टैबलेट मत दें, मोबाइल मत दें। मैं ऐसे रिसर्च पेपर के ऊपर खूब काम करता था और मैं बोलता भी था। अब जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन में जब हम कहते हैं कि 4 साल के बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो हम कहते हैं कि अरे डिजिटल डिवाइस का तो कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ माता पिता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चा क्या देखे, ये एजेंडा माँ बाप सेट करें। हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है तुझे रोटी नहीं देंगे क्योंकि तू ज्यादा खाता है, तुझे रोटी इसलिए नहीं देंगे कि तू ज्यादा खाता है। ये कोई हल हुआ? मतलब इसलिए उसको भूखा रखा जा रहा है, उसको रोटी रसोई में, किचन में उसको इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि वो ज्यादा खाता है। नहीं भाई, आपकी जितनी खुराक है उतना भोजन आपको देंगे, आप क्या देखोगे, ये एजेंडा माँ बाप सेट कर सकते हैं। टीवी के ऊपर माँ बाप अक्सर शिकायत करते हैं जी बच्चा तो सारा दिन कार्टून देखता है। अरे भाई, आप एजेंडा सेट कीजिए, आप बच्चे के साथ देखना शुरू कीजिए, उसे डिस्कवरी दिखाइए, एनिमल प्लेनेट दिखाइए, नेशनल ज्योग्राफिक दिखाइए, आप सेट कीजिए ना एजेंडा। तो बच्चा डिजिटल डिवाइस पे क्या करेगा, ये एजेंडा माँ बाप सेट करें, बच्चे को डिजिटल एक्सेस दें, बच्चे को इनोवेशन की तरफ लेके जाएं, इंटरनेट की, वाईफाई की फ्री फैसिलिटी बच्चे को दें। और राज्य सरकारें खासतौर पर रूरल इंडिया में जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप की जिसकी बात हो रही है, उसके बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस के लिए भारत सरकार फंडिंग करे और राज्यों को भी प्रोत्साहित करे और राज्य सरकारें काम करें। देखिए, मुझे मैं कोई मतलब मैं यहाँ सरकार के प्रचारक की हैसियत से नहीं बैठा, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ऐसा कर रही है। मैं देख रहा हूं महीने 1.5 महीने के अंदर 8वीं से 12वीं के जब हर बच्चे के पास टैबलेट पहुंचेगा और डिजिटल एक्सेस पहुंचेगा तो मैं मानता हूं कि चमत्कार आएगा। ठीक है, आप लोगों की राय भिन्न हो सकती है कि लर्निंग आउटकम कैसे सुधरेगा, ये कैसे सुधरेगा।
अरे भाई उसके लिए लगातार प्रयास होंगे, एक दिन हम उसको भी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब तक हम इस डिजिटल गैप को खत्म नहीं करेंगे, रूरल इंडिया के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से हर गांव की पंचायत तक, रविशंकर साहब अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे, मुझे उसने कितनी उम्मीद भरी बात वो कह रहे थे कि अब दुकान वाला, चाय वाला, किराना वाला भी बच्चों को या गांव के लोगों को वाईफाई एक्सेस देगा। तो हमें सचमुच इन चीजों के ऊपर काम करने की बात है और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है भाई। कबाड़ से जुगाड़ के मामले में ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, ये सारे वो है, इस चीजों में बहुत एक्सपर्ट हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात कर रहा था, जब हम किसी चीज के साथ दो चार होते हैं, मुसीबत में आते हैं, तब हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें पैसे कमाने के लिए, मुल्क की इकोनॉमी को एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए डॉलरों का और वो यूरो का जो भंडार है वो इस देश में लाने के लिए हम लोगों को जरूरत है कि अपने जुगाड़ों को अब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, उनके पेटेंट कराएं और इन मुल्कों को बेचें जिन्होंने हमारे को पता नहीं क्या क्या बेच दिया पिछले 200-250 सालों में। अब हम उनको बेचने की बारी की तरफ सोचें। थैंक यू। Perfect, Pramod sir. So I think government should look into the regarding the 6% GDP to invest in the education, because बातें हर बार 6% की जाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा कम रहता है। तो अगर डिजिटल डिवाइड को कम करना है तो फंडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो by we are wrapping this session. So Payal ma'am, we need your closing remarks within 2 minutes so that all our audience can put their questions as well, and we will send their questions to you on email so that you can revert me and we will get back to the audience. Payal ma'am, we need your closing remarks so that we can wrap the session. Sure. Thank you, Abhishek. So, quickly adding on to what Pramodji also said, that with regards to, so what we are also trying to do is that a teacher training certificate course in Finland, which is for 15,000 euros, we are trying to get that to India in a hybrid model for, let's say, 500 euros, which is like a huge, huge success, I would say, because we are looking at a country which has done this right for the last 100 years in terms of poll, and the focus on how a child should learn, what should be the takeaway, comes from the helm of a teacher. So yes, I would add on to Pramodji's forward and say that we also need a lot of international collaborations to learn from them, and then looking at becoming a superpower rather soon. So closing remarks, I would, adding on, I would really say that besides, because we work so heavily in the skills and putting the skills into a project, planning way, that is looking at employability and education, so sort of, in like together ways. We would say that besides learning maths and science and the so-called soft skills like, resilience, active learning, creativity, analytical thinking, will be crucial to carry out roles in a future workforce scenario. And as the world undergoes this double disruption of COVID-19 and automation, those economies have the opportunity to build back the best. And I would say that the education's age-old 3 R's, which are reading, writing, and arithmetic, are now being joined by a fourth one, which is rethink, and I would one reimagine. Like every child should, try and inculcate their learning into a project that says, how can I help my country? How can I better the agriculture, the environment, the defense? And there should be a goal oriented to it. Exams are fantastic. Assessment is great. However, a project model that a child is made as a prototype, which can then be made into a working prototype, is the real test, and not only the test, but also a success story of what the child has learned and what the teacher has given in terms of effectiveness. Thank you, Payal ma'am. So thank you, Pramod sir, for giving your precious time, and thank you, Payal ma'am, for giving your time to 17th World Education Summit. So there's a token of appreciation from our 17th World Education Summit side. We are giving you the speaker certificate for giving the time and highlighting the key ideas and the key innovation that has to be done in the school innovation. So I request Rajeshwar to share the virtual certificate to the speakers, and it's an honor for us and a pleasure that it is a. So speaker certificate is given to Payal Rajpal, founder, Hack the Crisis, India's South Asia Head Robotex.
Thank you, Payal ma'am. Thank you for joining 17th World Education Summit. And certificate is given to Pramod Kumar, State Program Officer, Department of School Education, Government of Haryana. Thank you, Pramod sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को हाईलाइट करने के लिए. So I request all my audience, if you have any question, you can directly follow their social handles as well. Payal is available on the social handle. Pramod sir is also available on the social handle. You can put their question, and if you have any question, you can put on the education@digitallearning.in. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for having Thank you, Ji. Thank you, Payal. Thank you, Abhishek.